میاں والی کے علاقے عیسیٰ خیل کے قبول خیل پولیس چیک پوسٹ پر دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے اور پولیس کی مؤثر جوابی کارروائی کے بعد حملہ آور فرار ہو گئے۔ ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق 12 سے 14 دہشت گردوں نے چیک پوسٹ پر راکٹ اور دستی بموں سے حملہ کیا۔ حملے میں 2 پولیس جوان معمولی زخمی ہوئے ہیں۔ ڈی پی او میاں والی ڈی ایس پی عیسیٰ خیل بھاری نفری کے ساتھ چیک پوسٹ پر پہنچ گئے ہیں۔ میاں والی کے علاقے عیسیٰ خیل میں قبول خیل پولیس چیک پوسٹ پر دہشت گردوں نے حملہ کیا۔ موسم سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کریں۔ آج سے مرطوب ہوائیں خلیج بنگال سے ملک کے بالائی علاقوں میں داخل ہوں گی۔ آج اور کل اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بارشیں ہوں گی۔ محکمہ موسمیات کا یہ بتانا ہے کہ بلوچستان میں 4 ستمبر تک بادل برسیں گے۔ اسلام آباد، لاہور، پشاور، کوئٹہ سمیت ملک کے مختلف مقامات پر آج بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج سے مرطوب ہوائیں خلیج بنگال سے ملک کے بالائی علاقوں میں داخل ہوں گی، جس کے باعث آج شام سے منگل تک اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بارشیں ہوں گی۔ بلوچستان میں 4 ستمبر تک بادل برسنے کی توقع ہے، جبکہ کراچی، حیدرآباد اور سکر سمیت سندھ بھر میں منگل اور بدھ کو تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ سہون میں منچھر جھیل کی سطح بڑھنے سے قریبی آبادی زیر آب آ گئی۔ جھانگارہ کے قریب جوار میں متاثرہ دیہات کی تعداد 5 ہو گئی ہے۔ کاچو کی یونین کونسل شاہ حسن اور نگاول کا بھی زمینی رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ دادو کی تحصیل جوہی کی گاج ندی میں سیلابی صورتحال سے متعلق تفصیلات بتا رہے ہیں نمائندہ جیو نیوز ریاض ناریجو۔ جی بالکل، میں بھی دادو کی تحصیل جوہی کے اس مقام پہ موجود ہوں جس کو ہم جوہی بائی پانی روڈ بولتے ہیں۔ گاج ندی میں حالیہ سیلابی پانی کی آمد کے ساتھ ہی یہاں پہ انفراسٹرکچر بھی متاثر ہوا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو مواصل نظام ہے وہ بھی متاثر ہوا ہے۔ پانی تو تقریباً جو ہے وہ اخراج ہو چکا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں گے گاج ڈیم کی جو ہے وہ گاج نئے کی جو ہے 2.5 فٹ پر ہے اور ایم این وی ڈرین بھی جو ہے وہ کافی حد تک لو ہو چکی ہے۔ منشر کی بھی جو ہے وہ پانی نکل رہا ہے۔ تقریباً 6-7 یونین کاؤنسل ہے جہاں پر یہ کافی گاؤں ہیں، ان گاؤں کا رابطہ ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ نیچرلی یہاں پر نئے کا پانی آ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی لوگوں کو جہاں جہاں پر ضرورت پڑی ہے ہم نے وہاں پر ان کو ریسکیو کیا ہے۔ ضلع دادو کے اندر بالخصوص کاچو کی بات کریں، وہاں پہ ضلع انتظامیہ سے جو ریسکیو سروس شروع کی گئی ہے اس میں اب تک کیا نتائج برآمد ہو چکے ہیں؟ جی ضلع بدین میں مانسون کی بارشوں اور سیم نالوں میں پڑنے والے شگافوں نے نظام زندگی کو مفلوج کر دیا ہے۔ ہزاروں ایکڑ پر کھڑی تیار فصلیں اور متعدد دیہات پانی کی لپیٹ میں ہیں۔ اعجاز زئی کی رپورٹ دیکھیے۔ بدین میں ہونے والی شدید بارشوں اور سیم نالوں میں پڑنے والے شگافوں نے شہری اور دیہی علاقوں میں تباہی مچا دی۔ تحصیل گلارچی کی یونین کونسل احمد راجو، ترائی، فتح آباد، محمد شاہ گراڑی اور کھوروا سمیت دیگر میں ہزاروں ایکڑ پر تیار چاول کی فصلیں اور متعدد دیہات زیر آب آ گئے۔ مس مینجمنٹ کی وجہ سے، کرپشن کی وجہ سے اس بارشوں میں پورا تحصیل جو ہے گلارچی وہ ڈوبا ہوا ہے اور لوگ بے یار و مددگار ہیں۔ علاقے سے منتخب ایم پی اے اسماعیل راہو کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت کی اس صورتحال میں ترجیح لوگوں کو ریسکیو کرنا اور سیم نالوں کی شگافوں کو پر کرنا ہے۔ فی الوقت جو ہماری ترجیح ہے وہ ریسکیو آپریشن اور پلس یہ جو شگاف ہیں ان کو بند کرنے کی ترجیح ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ مانسون بارشوں سے قبل سیم نالوں کی صفائی کے ساتھ نکاسی آب کے نظام کو بہتر بنایا جاتا تو شہریوں کو مشکلات اور ان کے ہونے والے نقصانات سے بچایا جا سکتا تھا۔ کیمرامین مقبول احمد کے ساتھ اعجاز زئی، جیو نیوز، بدین۔ بلوچستان کے مختلف اضلاع میں بارش کے بعد جھل مکسی میں رابطہ سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ جعفر آباد اور نصیر آباد میں متاثرین کھلے آسمان تلے امداد کے منتظر ہیں۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں ندی نالوں میں طغیانی سے تباہی جاری ہے۔ شمالی بلوچستان کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش سے کوزک ٹاپ، شیلا باغ، زڑا بند، توبہ چکزئی میں سیلابی صورتحال ہے۔ قلعہ عبداللہ کے علاقوں ماچکا، آرمبی، کولاگ، گلستان میں موسلادھار بارشوں سے ماچکا ندی میں اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ جھل مکسی میں سیلابی ریلا گزر گیا لیکن بڑے پیمانے پر نقصانات کر گیا۔
नौताल गंदावा शाहरा समेत ज़िले की तमाम राब्ता सड़कें सैलाब से मुतासिर हैं, जिसकी वजह से ग़िज़ाई किल्लत पैदा हो गई है। गंदावा में गुज़िश्ता 4 हफ्तों से बिजली की सप्लाई भी मुअत्तल है। तहसील सनी का ज़िला बोलान से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता है। नसीराबाद मंजोशूरी में सैलाबी रेल से मुतासरा दर्जनों ख़ानदानों ने सड़क किनारे पनाह ले रखी है। पर हमारे पुस गए, न हमको न आटा है न राशन है, हम क्या खाऊं? डीसी ने बोला है राशन सुबह लेकर आएंगे, अभी उसने राशन भी नहीं लिए कर आया है। अभी गरीब पड़े हैं इधर, अभी बरसात का बहुत इम्कान है। जाफराबाद में सड़क किनारे पनाह लेने वाले बेघर सैलाब मुतासरीन इमदाद के मुंतज़िर हैं। कराची में बच्ची से ज्यादती और कत्ल केस में मतलूब मुलजिम मुबैना मुकाबले के बाद जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है। नुमाइंदा जी न्यूज़ कमर अली मस्तूरी हमारे साथ मौजूद हैं। कमर, बच्ची से ज्यादती का मरकजी मुलजिम है, ये क्या मालूमात मिल सकी इस मुतालिक? जी, पुलिस का कहना है कि मुलजिम का एक साथी पहले गिरफ्तार हुआ था और उसकी निशानदेही पर ही पुलिस मुलजिम को तलाश कर रही थी। आज पुलिस को इत्तला मिली कि मुलजिम डिफेंस फेज 8 में मौजूद है। जब पुलिस ने वहाँ छापा मारा तो फायरिंग के तबादले के बाद मुलजिम हासिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम हासिम वाक़े के बाद से जो है वो फरार था और इस वाक़े का मरकजी मुलजिम था। मजीद जो है पुलिस मुलजिम से तफ्तीश कर रही है कि आया इस वाक़े में मुलजमान के साथ दीगर भी उनके साथी हैं या सिर्फ यही 2 मुलजमान थे। ये वाक़या कुछ रोज़ कबल सदर के इलाके में पेश आया था, जहाँ पर मुलजमान ने बच्ची के साथ ज्यादती और कत्ल के बाद उसकी लाश बोरी में बंद करके लकी स्टार के करीब पहुँच दी थी और उस केस पर जो है पुलिस मुलजिम उस रोज़ से ही कार्रवाई कर रही थी। पुलिस गिरफ्तार मुलजिम से मजीद तफ्तीश करेगी और उसके दीगर साथियों से मुतालिक भी पूछगछ की जा रही है। दीगर साथियों से मुतालिक भी पूछगछ की जा रही है। शुक्रिया कमर अली मस्तोई, आपने अपडेट किया। कराची के इलाके गार्डन में कुएं में गिरने वाले 2 बच्चे और उन्हें बचाने के लिए कुएं में उतरने वाला प्लम्बर जाँ बहक हो गए। बच्चे कुएं पर रखे ढक्कन पर उछल कूद कर रहे थे कि अचानक ढक्कन टूट गया। कुएं के अंदर पानी मौजूद नहीं था। जाँ बहक होने वाले 8 साल के बच्चे बदर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे दानियाल सैयद। गार्डन वेस्ट फवारा चौक के करीब रिहायशी इमारत में खेलते हुए 2 बच्चे कुएं में गिर गए। इलाका मकीनों ने प्लम्बर को अंदर उतारा और वो भी रस्सी टूट जाने के सबब अंदर ही फंस गया। इत्तला मिलने पर पुलिस और रेस्क्यू एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर ऑपरेशन किया। पुलिस और रेस्क्यू एहलकारों ने बच्चों और नौजवानों को निकालने की मुतादिद कोशिशें की, लेकिन वो तीनों की जान बचाने में कामयाब न हो सके। कुएं में ऑक्सीजन की कमी, 100 फुट से ज़ायद गहराई और कम चौड़ाई के बाइस रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना रहा। इलाका मकीनों ने इल्ज़ाम लगाया कि रेस्क्यू टीम वाक़ये के काफ़ी देर बाद जाए वक़ुआ पर पहुंची। बच्चों को बर वक्त रेस्क्यू कर लिया जाता तो उनकी जानें बच सकती थीं। रेस्क्यू टीमों के पास वसाइल भी मौजूद नहीं थे, जबकि लाशें भी मजदूरों ने निकाली। 1 से 1.5 घंटे के बाद रेस्क्यू आई है। उन्होंने फिर पहली एक रेस्क्यू आई है, एक बंदा उनका गया है, वो अंदर जाके दोबारा वो वापस आ गया, कहता है अंदर तो इसके नीचे और ज़्यादा गहराई है, मैं अंदर कैसे जाऊँ। फिर एक और टीम आई है रेस्क्यू की। अगर ये रेस्क्यू आधे घंटे के अंदर हो जाता सारा काम तो सबकी जानें बच सकती। ये अपनी मदद आपके तहत हम लोगों ने खुद उनको बाहर निकलवाया है। कोई हमारी गवर्नमेंट की सहूलत कुछ नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई ऑक्सीजन, यहाँ तक कि ऑक्सीजन तक नहीं है उनके पास कि उनको लेकर किस तरह से निकालना है। मुतवफ़ी प्लम्बर फैज़ान बच्चों में शामिल बदर और तलहा की लाशों को कानूनी कार्रवाई के बाद सर्द खाने मुंतकिल कर दिया गया। कैमरामैन अदनान जैदी के साथ दानियाल सैयद, जियो न्यूज़, कराची। तहरीक इंसाफ फौज से डेडलॉक खत्म करना चाहती है, इस्टेब्लिशमेंट को मुज़ाकरात की पेशकश कर रही है। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन ने बता दिया कि डेडलॉक ख़त्म करने के लिए जो कुछ कर सकते हैं हमने किया और उनके दरवाजे इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के लिए अब भी खुले हैं। दोनों के दरमियान बातचीत की अशद ज़रूरत है। जो भी बात होगी वो आइन के दायरे में होगी। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में रऊफ हसन ने कहा कि इस्लामाबाद का जलसा मनसूख होने पर सामने आया है कि इनफरादी सतह पर लोगों के इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते हैं।
मुज़ाकरात की इन खबरों के दरमियान वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इंकिशाफ किया है कि नवाज शरीफ ने तो पार्टी इजलास में PTI से मुज़ाकरात की बात ही नहीं की। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि PTI जब तक 9 मई वाक़या से कौम से माफ़ी नहीं मांगेगी बात आगे नहीं बढ़ेगी। उनका कहना था कि 9 मई वाक़यात का एहतसाब 200% होना चाहिए। उनका ये भी कहना था कि नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में सिर्फ पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात और बिजली के बिलों पर बात की गई। कल नून लीग की मीटिंग थी जिसकी सदारत कर रहे थे प्रेसिडेंट नवाज शरीफ साहब, और उस मीटिंग के बाद तो हमें बताया गया कि मीटिंग के हवाले से थी। एहसन इकबाल साहब से जब ये भी पूछा गया कि क्या मुज़ाकरात होंगे और PTI से भी हो सकते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, पाकिस्तान तरीके इंसाफ से मुज़ाकरात नहीं हो सकते जब तक वो माफ़ी ना मांगे। लेकिन फिर खबर ये भी सामने आई कि नून लीग के सदर नवाज शरीफ साहब ने कहा था मीटिंग में कि तमाम सियासी जमातों को बातचीत करनी चाहिए, इदारे भी साथ बैठे ताकि मुल्क के जो मसाइल हैं उनका हल निकाला जा सके। तो आप मीटिंग का हिस्सा थे, ज़रा बताइएगा कि PTI की तरफ भी इशारा था नवाज शरीफ साहब का? नहीं, देखें, इसमें जो आप जिस तरफ बात कर रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब ने ये फरमाया, ये बात वहाँ पे नहीं। उसमें 2 मौजू के जो है ना उसके ऊपर हमने कॉन्सेंट्रेट किया और हमारी सारी डिस्कशन थी वो लिमिट रही, क्योंकि पंजाब में अभी तक बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए, बाकी सूबों में होगी, तो हमने करवाने हैं इंतखाबात। एक तो ये एजेंडे का आइटम था। दूसरा आइटम जो था वो बिजली के बिल थे और कि किस तरह जो है बिजली की जो निर्ख जो है वो कम किए जा सकते हैं। तो इसके अलावा कोई वहाँ पे जो है सियासी बात जो है अदरवाइज सभी दूसरे पार्टियों के साथ या मुज़ाकरात के मुतल्लिक़ जो है ऐसी कोई बात नहीं हुई। अगर किसी ने ये बात की है, बात जो है मेरा नहीं ख्याल किसी ने भी की है। दूसरी जानिब चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने वज़ीर आज़म को यह मशवरा दिया है कि उन्हें सियासी मुज़ाकरात की शुरुआत और क़यादत करनी चाहिए। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से बात करते हुए यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि मुज़ाकरात का होना बहुत अच्छी बात है। तमाम सियासी जमातों बशमूल तहरीक इंसाफ सबके दरमियान मुज़ाकरात होने चाहिए। अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं बहुत अच्छी मुज़ाकरात होने चाहिए। जो पॉलिटिशियन जो होते हैं उनके डायलॉग होने चाहिए। नेशनल इंटरेस्ट पे तमाम पार्टियों को मुज़ाकरात करने चाहिए, बाशमूल तहरीक इंसाफ। जिस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको लीड लेनी चाहिए और वो इनिशिएटिव। पीपल्स पार्टी अपना कोई रोल प्ले करेगी अगर मुज़ाकरात के लिए जो मामलात आगे बढ़ते हैं PTI के साथ? पीपल्स पार्टी अगर कोई प्राइम मिनिस्टर फैसला करेगा तो प्राइम मिनिस्टर की जब बात होगी और नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल इश्यूज के ऊपर हम दफा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत मौशी इस्लाहात की पॉलिसी पर गामजन है और राइट साइजिंग पॉलिसी पर भी तेज़ी से काम हो रहा है, जिसकी निगरानी वो खुद कर रहे हैं और इसके मईशत पर मुस्बत असरात जल्द नुमायां होंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत की जानिब से बिजली सारिफीन को बिल्स की मदद में एक बड़ा रिलीफ दिया गया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद कमी की गई है। हमारी हुकूमत तमाम फ़वाइद आम आदमी तक मुंतकिल करने पर यकीन रखती है। वज़ीर आज़म ने कहा कि अवाम की मुश्किलात का एहसास है और हुकूमत अवाम की मुश्किलात और मसाइल के हल के लिए दिन रात काम कर रही है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुआशी माहिरीन की जानिब से सितंबर के महीने में अफरात ज़र की शरह में मज़ीद कमी की पेशगोई खुशाइंद है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद गुड्स ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी न होने पर फलों और सब्जियों की कीमतें कम न हो सकीं। मज़ीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अमजद सईद। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सब्जी मंडी कमालिया में मौजूद हूँ। हुकूमत की जानब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई है। जब हुकूमत की जानब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया जाता है तो फलों और सब्जियों की कीमतों में फौरी तौर पर इजाफा कर दिया जाता है। अब कमी की गई है तो इस बारे में हमने मंडी और बाजार में शहरियों से सर्वे किया तो कीमतों में कोई कमी वाक़ई ना हो सकी है। इस वक्त मेरे साथ सब्जी मंडी कमालिया में एक आड़ती मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं कि इस बारे में इनका क्या कहना है। गुज़श्ता एक हफ्ते से सब्जी और फ्रूट की कीमतों में कोई फ़र्क नहीं आया। अगर पेट्रोल की कीमत 2 रुपये कीमत ज़्यादा होती है तो किराएदार गाड़ियों वाले किराए जो दूसरे शहरों से आते हैं वो 10-10 हज़ार रुपये ज़्यादा कर देते हैं। वो सारा उसका असर वो सब्जी और फ्रूट में पड़ता है, उसकी कीमतें ज़्यादा हो जाती हैं। उस पेट्रोलियम की मसनूआत की कमी की वजह से अगर कमी होती है
तो उनको चाहिए रेट कम करें, अगर ज्यादा होती है रेट है ये 10-10 हज़ार रुपया 5-5 हज़ार रुपया एक गाड़ी का किराया ज्यादा कर देती हैं, वो सारा इस माल पे ऊपर पड़ता है। जी, इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि हुकूमत जिस तरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर किरायों में अमल दरामद करवाती है, इसी तरह गुड ट्रांसपोर्ट के लिए भी किराया नामा जारी किया जाए ताकि वो उस किराए के मुताबिक वसूल कर सके और आवाम को रिलीफ मिल सके। जी, जनूबी वजीरिस्तान में कई माह से 21 से 22 घंटों की एलानी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिससे न सिर्फ ज़मींदार तबका मुतासर हो रहा है बल्कि कारोबारी तबका भी शदीद मुतासर हो रहा है। मज़ीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ आदम खान वजीर। जी, जिला लाहौर जनूबी वजीरिस्तान में गुज़श्ता कई माह से 21 और 22 घंटे लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना दोबार कर दिया गया है, जिससे न सिर्फ आम जमींदार तबका शदीद मुतासर हो रहा है बल्कि बाजारों में कारोबारी तबका भी शदीद मुतासर हो रहा है। इस हवाले से हमने आम शहरियों से भी बात की। आम शहरियों का कहना है कि यहाँ बिजली न होने के बराबर है। यहाँ 24 घंटों में सिर्फ 2 या 3 घंटे बिजली हमें फराहम की जाती है, जिससे हमारा काम नहीं चलता। दूसरी जानिब टेस्को हुकाम का कहना है कि हमें पेशावर से जो शेड्यूल आती है हम उसके मुताबिक देही और शहरी इलाकों को बिजली फराहम की जाती है। जी, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के स्कूल्स में तातीलात के बाद स्कूल्स खुल गए हैं। तफसील बताएंगी जियो न्यूज़ की नुमाइंदा नादिया सबूही। जी, मौसमी गर्मा की तातीलात ख़त्म होने के बाद पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में आज स्कूल खुल गए हैं। तलबा ने अपने स्कूलों को रुख किया है, ताहम ये जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, इनका ये कहना है कि चूँकि 3 महीने की छुट्टियाँ इन्होंने गुजारी हैं, घरों में रहे हैं, खूब मौज मस्ती की है, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आज भी मूड में दिखाई नहीं दे रहे, बल्कि इनका ये भी कहना है कि इनके कुछ दोस्त आज भी स्कूल नहीं आ रहे। अगर हम मजमूई तौर पर बात करें पेशावर के मुख्तलिफ स्कूलों की, तो बच्चे मुख्तलिफ जो ट्रांसपोर्ट है बच्चों की वो सड़कों पर रवा दवा हैं और बहुत ज़्यादा चहल पहल दिखाई दे रही है। ताहम कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अपनी पढ़ाई के मामले में बहुत ज़्यादा सीरियस है। उनका ये कहना है कि वो घर में थे तो उनकी पढ़ाई का हर्ज हो रहा था, अब स्कूल खुल गया है तो बेहतर अंदाज में अपनी पढ़ाई कर सकेंगे और वो अच्छे मार्क्स के ख्वाह हैं ताकि वो इम्तहानात में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर सके। मौजूदा दौर में जो असातिज़ा जो हैं मौसम गर्मा हो या मौसम सरमा की तातीलात के बाद अपने स्टूडेंट्स का इसी तरह वालिहाना इस्तकबाल करते हैं ताकि उनका मोराल हाई हो और ये बच्चे जैसे ही पहले दिन स्कूल की छुट्टियाँ ख़त्म होने के बाद स्कूल आएँ तो वो हंसी खुशी अपनी क्लासों में जाएँ और अपनी पढ़ाई का सिलसिला दोबारा से जारी कर सकें। जी, फैसलाबाद के शायकीन के क्रिकेट के लिए खुशखबरी है कि वो चैंपियंस वनडे कप में प्ले ऑफ के 4 मैचेस के अलावा तमाम मैचेस इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में मुफ्त देख सकेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत चैंपियंस वनडे कप के इंतजामात का इजलास हुआ। पीसीबी ने पहली बार डोमेस्टिक क्रिकेट सीजन में चैंपियंस इवेंट कराने का फैसला किया। इस सिलसिले में पहला चैंपियन वनडे कप 12 सितंबर से फैसलाबाद में शुरू हो रहा है। इजलास में इवेंट की तैयारियों का जायजा लिया गया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा कि चैंपियंस इवेंट कराने से न सिर्फ नया टैलेंट सामने आएगा बल्कि डोमेस्टिक क्रिकेट भी मजबूत होगी। टीमों के खिलाड़ियों के लिए फिटनेस टेस्ट का मरहला मुकम्मल कर लिया गया है। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का कहना है कि ओलंपिक के लिए बराह रास्त क्वालिफाई करने का एजाज़ हासिल किया। दोनों घुटनों और कोहनी की सर्जरी के बावजूद मेहनत जारी रखी और पेरिस ओलंपिक्स में मेहनत और लगन के साथ गोल्ड मेडल जीता। लाहौर में एक तकरीब से खिताब करते हुए अरशद नदीम ने कहा कि उन्होंने स्कूल की सतह से मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लेना शुरू किया। 2015 से कौमी सतह के मुकाबलों में शिरकत करना शुरू की। 2024 तक जेवलिन थ्रो में 10 कौमी रिकॉर्ड कायम किए। वो मौजूदा नेशनल चैंपियन भी हैं। अरशद नदीम का मजीद कहना था कि नौजवान मेहनत जारी रखें तो अल्लाह मेहनत का फल जरूर देता है। पहली नेशनल मैंने 2015 से खेली। जब मैं वापडा में आया तो वहाँ से मैंने पहली नेशनल चैंपियनशिप खेली। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2015 से अभी 24 जा रहा है 2024 तो पाकिस्तान का चैंपियन और मैंने 10 दफ़ा पाकिस्तान का रिकॉर्ड ब्रेक किया है। कोई भी काम है उसमें मेहनत है लेकिन मेहनत लगन के साथ करनी चाहिए तो उसका जो कहते हैं फल अल्लाह ताला जरूर देता है। कराची और जहलम में बैक वक्त होने वाली नेशनल एयर गन शूटिंग चैंपियनशिप में सीनियर कैटेगरी नेवी जबकि जूनियर कैटेगरी पाकिस्तान आर्मी के नाम रही।
नेशनल एयरगन शूटिंग चैंपियनशिप के मुकाबले जहलम और कराची में बैक वक्त मुनक्किद हुए। चैंपियनशिप में एयर पिस्टल और एयर राइफल के इवेंट्स हुए। पाकिस्तान नेवी के शूटर्स ने सीनियर कैटेगरी में शानदार कामयाबी हासिल की। मजमूई तौर पर 7 मेडल जीतकर पहली पोजीशन अपने नाम की। नेवी ने 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता, जबकि आर्मी ने 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए। जूनियर कैटेगरी में आर्मी ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाते हुए 4 गोल्ड, 5 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते, जबकि नेवी ने 4 गोल्ड, 3 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए। अमरीकी सदर जो बाइडन ने पाकिस्तानी अमेरिकन शायर और अदीब रईस वारसी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा है। रईस वारसी उर्दू मरकज़ न्यूयॉर्क के सदर हैं। सदर बाइडन की जानिब से ये मेडल न्यूयॉर्क असम्बली की रुकन जेसिका गोंजालेस ने पेश किया। रईस वारसी गुज़श्ता 34 बरस से उर्दू की आलमी सतह पर तजवीज़ में मसरूफ़ हैं। उन्होंने उर्दू ज़ुबान को अक़वाम मुत्तहिदा की सरकारी ज़ुबानों में शामिल करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में पहली उर्दू कॉन्फ्रेंस का भी इनेक़ाद किया था, जिसमें पाकिस्तान और भारत के सरबराहों और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भी उर्दू की अहमियत तस्लीम की थी। उन्हें पाकिस्तान की ओवरसीज़ मिनिस्ट्री की जानिब से फ़ख्र पाकिस्तान का अवार्ड भी दिया जा चुका है। हुंजा में कराकरम चैलेंज 2024 मैराथन खत्म हो गई है। 300 से ज़ायद शुरका ने रेस में हिस्सा लिया। अली अहमद की रिपोर्ट देखिए। गिलगित बल्तिस्तान का हसीन जिला हुंजा, जहां कराकरम चैलेंज 2024 मैराथन की तैयारियां कई रोज से जारी थी। आज मुकाबले के आगाज से वार्म अप किया गया। मुंतज़मीन के मुताबिक कुल 300 मैराथन शरीक हुए, जिनमें गैर मुल्कियों की भी बड़ी तादाद थी। पाकिस्तान की हसीन और बलखाती शाहराह कराकरम पर दौड़ते रहे मैराथन में 10 और 21 किलोमीटर की 2 कैटेगरी थी, जिनमें मुख्तलिफ उम्र के लोगों ने हिस्सा लिया। लोकल्स भी हैं, फॉरेनर्स भी हैं, डाउन से भी लोग आए हैं। कुछ फॉरेनर्स की फ़्लाइट कैंसिलेशन की वजह से नहीं ज्वाइन कर पा रहे, लेकिन एक ओवरऑल हमें एक अच्छी पार्टिसिपेशन नज़र आ रही है। 21 किलोमीटर कैटेगरी में फैज़ान फेज़ ने 1 घंटा 20 मिनट 11 सेकंड में फासला तय करके पहली पोजीशन हासिल की। खुशामदीन ने दूसरी और इकराम ने तीसरी पोजीशन हासिल की। मैं मरी का रहने वाला हूँ। बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है और बहुत अच्छा ट्रैक भी था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 21 किलोमीटर का टाइम 1 घंटा 21 मिनट में मैंने किया पूरा। बहुत टफ टाइम दिया इधर। 21 किलोमीटर कैटेगरी फीमेल में अंजा मेर्थिव ने 1 घंटा 57 मिनट 18 सेकंड में फासला तय करके पहली पोजीशन हासिल की। हुमैरा ने दूसरी और फ्लोरा ने तीसरी पोजीशन हासिल की। 10 किलोमीटर कैटेगरी में ज़ुहैब शाहिद ने 37 मिनट 27 सेकंड में फैसला तय करके पहली पोजीशन हासिल की। वक़ार अहमद ने दूसरी और उमर जमान ने तीसरी पोजीशन हासिल की। 10 किलोमीटर फीमेल में निदा करीम ने 56 मिनट 53 सेकंड में फासला तय करके पहली पोजीशन हासिल की। रुखसाना मरियम ने दूसरी और संजीदा करीम ने तीसरी पोजीशन हासिल की। गैर मुल्की मेहमानों ने इस इवेंट को यादगार करार दे दिया। Oh, it was absolutely amazing. So it was my first ever half marathon, but to be able to do it in such a beautiful place was just like amazing. नगर पार्कर में कारोंजर पहाड़ के वस्त में वाक़े खूबसूरत सयाहती मकाम माया आबशार इन दिनों सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल गनी बजीर। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ नगर पार्कर के खूबसूरत सयाहती मकाम माया आबशार पर, जहाँ पर कारोंजर के हसीन पहाड़ी सिलसिलों से बारिशों के बाद जारी होने वाली नहरें इस मकाम पर पहुंचकर आबशार का रुख इख्तियार कर चुकी हैं, जिसे देखने के लिए बड़ी तादाद में सयाह यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप मेरे अकब में न सिर्फ देख सकते हैं यह खूबसूरत मनाजिर, बल्कि इन हसीन आबशारों का शोर भी सुन सकते हैं, जहाँ पर सयाह नहाकर खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। ताहम नगर पार्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों के बाद इसी तरह से मुख्तलिफ मकामात से जारी होने वाली नहरों ने इस इलाके की कुदरती खूबसूरती को 4 चांद लगा दिए हैं। ताहम इलाके मकीनों का कहना है कि नगर पार्क के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिशों के बाद अगले 12 से 15 रोज तक मुख्तलिफ मकामात पर इस तरह के आबशारें जारी रहती हैं। जी।